Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. Today we'll be doing part number 2 and final part of the chapter The Carew murder case. So as I told you, it is an extract from the novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So what happened the first part was that basically a murder हो गया था at street में, and it was being watched by a female, a woman. It was a maid servant. She was a maid servant actually. और ये हुआ था कि जो murder करके गया था तो the person who was murdered, he was hit by a stick, or as we said, the stick, it was broken. The half stick was remained over there, and half stick was it wasn't there at that place. So what they found was there was an envelope which was for the name of Mr. Utterson. He was a lawyer by profession. So what happened कि morning में वो जो envelope था वो उनके पास पहुंचा, and then उसके आगे let's start the second part. So we see in the last part we saw that the police inspector said okay, I'll give you the ride through the cab to that place where that murder was occurred, and Mr. Utterson जो है उसके साथ उस जगह पे गया. So it was by this time about 9 in the morning, and the first fog of the season hung in the streets. So what happened कि it was 9 यानी कि जब वो morning में वो पहुंचे, it was about 9 o'clock in the morning, और first fog यानी कि जब पहली धुंध थी सीजन की वो पूरे streets में छाई हुई थी. The cab rolled slowly down the dark dreary streets, and Mr. Utterson felt gloomy. अच्छा, कैब जो था जिस पे वो लोग बैठ के गए थे वो बहुत स्लोली चल रही थी, और डार्क स्ट्रीट्स थी, काफ़ी डार्क थी स्ट्रीट्स, एंड काफ़ी तारीख थी. रेडी का मतलब काफ़ी तारीख, अंधेरा था स्ट्रीट्स में. और मिस्टर अटरसन says he was very sad. As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted a little and showed him a dingy street, a grubby eating house. अच्छा, जैसी कैब जो है वो एड्रेस बिफोर दैट जैसी एड्रेस के बाहर सामने आ रही थी, ड्रू अप अगेंस्ट द फ्रेजल वर्ब, और जैसे ही वो उसके सामने आके खड़ी हुई तो वहाँ पे लिटिल जो है वो फॉग था, और जिस फॉग से नज़र आ रहा था वहाँ पे डिंगी और ग्रबी ईटिंग हाउस, यानी कि इसका बहुत ही डर्टी लुकिंग हाउस था वहाँ पे, जो उनको लोग वहाँ पे व्यू वो कर रहे थे. A few shops selling cheap goods made ragged children huddled in the doorways, and many people of different nationalities passing by. अच्छा, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जो बहुत ही सस्ते सामान वहाँ पे बिक रहा था. काफ़ी जो रैग चिल्ड्रन यानी कि जो बहुत जो फटे पुराने चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं बाहर अक्सर जो दे वर देयर फॉर जैसे कि जो मांगने वाले होते हैं इस तरह के टाइप के जो होते हैं, तो वो दे वर देयर, और वो वहाँ पे घूम फिर रहे थे, और वहाँ पे दरवाज़ों पे यानी कि आसपास इस एरिया में, और डिफरेंट नेशनलिटीज़ यानी कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ का मतलब है कि डिफरेंट जो मुल्कों के लोग होते हैं वो वहाँ पे थे और वहाँ पे आसपास घूम रहे थे. And the next moment, the fox settled down upon that part as brown as umber and cut him off from his lowly surroundings. अच्छा, नेक्स्ट ही मोमेंट मतलब उसी वक्त जो था नेक्स्ट ही मोमेंट था वहाँ पे जो सेटल डाउन, वहाँ का जो कलर था बिल्कुल ब्राउन एज अम्बर. जैसे कि ब्राउन एक पर्टिकुलर सा कलर हमने स्टार्टिंग में मीनिंग से पढ़ा था, एक ब्राउन सा बिल्कुल अंधेरे से अक्सर विंटर्स में हो जाता है जब फॉग्स होती है, धुंध होती है, तो वो कलर्स वहाँ पे आ गया. जो इसका जो लोवली यानी कि लोअर सरफेस सराउंडिंग्स था उसका बिल्कुल ही डिफरेंट सा कलर हो गया था. This was the home of Henry Jekyll, favorite of a man who was heir to a quarter of a million sterling. अच्छा, ये घर किसका था? हेनरी जैकल का था, जो फेवरेट था, और वो एक हेयर था यानी कि उसके पास विरासत थी, तकरीबन काफ़ी लाखों रुपए की, डॉलर्स की उसके पास विरासत थी. An ivory face and silvery haired old woman opened the door. अच्छा, when they reached over there तो उनको एक ivory face यानी कि बहुत ही pale face, yellow face और silvery hair यानी कि सफ़ेद बालों की जो एक old woman थी, उसने दरवाज़ा खोला. She had an evil face, smoothed by hypocrisy. अच्छा, उसका जो फेस था वो काफ़ी बुरा था, और जैसे कि hypocrisy कहते हैं कि the person who has something inside different but apparently इसका एक लुक बहुत डिफरेंट होता है, apparently कुछ और होता है जिसको हम मुनाफकत भी कहते हैं. But her manners were excellent. लेकिन जिस तरह से वो बिहेव करी थी, the way she was behaving were very excellent, और बहुत अच्छे से बिहेव करी थी, अच्छे से बात कर रही थी. Yes, she said, this was Mr. Hyde, but he was not at home. हाँ, उसने कहा कि yes, ये घर तो मिस्टर हाइड का है लेकिन वो घर पे नहीं है. He had been that night very late, but had gone away again in less than an hour. वो आए थे काफ़ी लेट, लेकिन आधे ही घंटे में
Less than an hour, एक ही घंटे के अंदर अंदर वापस चले गए. There was nothing strange in that. His habits were very irregular and he was often absent. For instance, it was nearly 2 months since she had been seen him till yesterday. उसने कहा कि उसके लिए कोई नई बात नहीं, स्ट्रेंज नहीं, बिकॉज उसके जो हैबिट्स हैं वो इस टाइप के हैं, मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेट आते हैं, और वो अक्सर जो है ऑफन निकम अक्सर जो है वो एब्सेंट रहते हैं घर से. यानी कि वो 2 months जो था के बाद वो कल यानी कि वो आए थे, 2 months से वो he was not at home. Very well, then we wish to see his room, said the lawyer, and when the women began to declare it was impossible, I had better tell you who his person is, he added. This is Inspector Newcomen of Scotland Yard. अच्छा, उसने ये कहा, फिर जो उनके साथ इंस्पेक्टर था और लॉयर, उसने कहा कि मैं रूम्स देखना चाहते हैं. तो वुमेन जो है, उसने जो औरत थी उसने कहा कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, और ये मैं अलाउ नहीं कर सकती. तो उसने इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तुमको बता दूँ ये कौन है, कि ये जो है जो लॉयर ने कहा कि इंस्पेक्टर है न्यूकमन के स्कॉटलैंड ऑफ यार्ड के. A flash of odious joy appeared upon the woman's face. अच्छा, काफ़ी अनप्लेजेंट सा लगा, नाखुशगवार, यानी कि उसको ही did not feel seems to be happy with कि उसने जो है उसको पता चला कि जो ये इंस्पेक्टर है स्कॉटलैंड यार्ड का. तो बट उसने कहा she said he's in trouble, what has he done? So she said कि what happened to him? Is he in trouble? Has he done anything wrong? So Mr. Utterson and the inspector exchanged glances. Exchange glances यानी कि एक दूसरे की तरफ नहीं, गौर से तकना, stare करना, that's called glance. He does not seem a very popular character, observed the inspector. How? And now just let us in. तो उसने कहा कि ये जो उनका कैरेक्टर था वो कोई इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब he does not feel seems to be famous. So in the whole extent of the house, which but for the old women remained otherwise empty, Mr. Hyde had only used a couple of rooms, but these were furnished with luxury and good taste. अच्छा, पूरा घर घूमने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि वो कुछ ही कमरे थे जो यूज़ किए जाते थे मिस्टर हाइड के, और जो भी यूज़ करते थे वो काफ़ी वेल फर्निश थे, काफ़ी लग्जरियस थे, काफ़ी इसमें सहूलियात की तमाम चीज़ें थी, प्लस ये कि उनका अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छे ही जैसे कि फर्नीचर्स या ऑल दैट, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ही अच्छे तरीके से लग्जरियस और एवरीथिंग अवेलेबल देयर. The cupboard was filled with food and drinks. एक कबर्ड था जिसके अंदर खाने की पीने की चीज़ें and drinks available थे. The table was set with silver cutlery and fine china artwork hung upon the wall. Okay, hung is the past tense of hang, यानी कि लटकना, यानी कि वहाँ पे चाइना के जो आर्ट वर्क्स थे वो भी वॉल हैंगिंग पे वॉल पे हैंग हुए थे, जैसे पेंटिंग्स वगैरह थी, और एक सिल्वर कटलरी यानी कि जो भी वहाँ पे कटलरी इज़ जो जैसे कि चमचे कांटे वगैरह होते हैं जितने भी उनके, वो वहाँ पे जो वो सिल्वर कटलरी यूज़ की हुई थी. So, as a gift, as Utterson is supposed, from Henry Jekyll, who was master of a connoisseur. अच्छा, कॉनर्सर आपको मैंने पता है कि कौन था, कि उसको ये सब चीज़ें उसने सोचा कि किसी को गिफ्ट दी गई थी, जिस ऐसे शख्स से जिसको इस चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट हो, खाने पीने का या मुख्तलिफ चीज़ों का अच्छा जानकारी रखता हो. एंड द कार्पेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और जब वहाँ पे कालीन बिछे हुए तो काफ़ी महंगे थे और काफ़ी thick थे, मोटे थे. At this moment, however, the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. अच्छा, वहाँ पे इनको घूमने के दौरान ये चीज़ को एहसास हुई कि उन सब चीज़ों को जैसे कि लूटा गया है, यानी कोई चीज़ वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है, यहाँ वहाँ मतलब तितर बितर सारी चीज़ें, सब चीज़ें फैली हुई थी. रैंसैक नहीं, लूटा गया है. क्लोथ्स lay about the floor with their pockets inside out. क्लोथ्स जो कपड़े थे वो ज़मीन पे बिखरे हुए थे और उनसे पॉकेट्स थी वो बाहर निकली हुई थी. Drawers stood open, and on the hearth where lay a pile of grey ashes. Drawers these stood against the pastures of stand. डोर्स भी खुली हुई थी, और वहाँ पे हेरथ कहते हैं जो फायर प्लेस होती है जिस पे आग जलती है. जब वहाँ पे पाइल ऑफ ग्रे एशेस यानी कि जले हुए एशेस थे, टुकड़े थे, वहाँ पे राख थी. एज द मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न, जैसे कि काफ़ी सारे पेपर्स को यहाँ पे बर्न किया गया. फ्रॉम दीज एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिसेंटर्ड द स्टेप ऑफ अ ग्रीन चेकबुक. अच्छा, वहाँ जो बचे हुए जो राख के हिस्से थे, जो बचे हुए हिस्से थे, जो उनको जलाया गया था, वहाँ पे इंस्पेक्टर ने ये देखा कि वहाँ पे ग्रीन चेकबुक के कुछ बचे हुए टुकड़े थे, which had resisted the action of the fire. The other half of the stick was found behind the door. जिसने जो वहाँ चेकबुक थी वो भी जलने से बच गई थी कुछ इससे, और वहाँ पे जो आधी स्टिक थी जो वहाँ से उस वक्त जहाँ पे मर्डर स्पॉट था वहाँ से गायब थी, वो भी उनको वहाँ से मिल गई. And as his clinches suspicions, the officer declared himself delighted. अच्छा, जैसे ही उसका शक जो है वो क्लियर हो गया, उसको वो ऑफिसर था बड़ा काफ़ी वो delighted means very happy. He became very happy. A visit to the bank where several thousand pounds
were found to be lying to the murderer's credit to complete his gratifications. विजिट बैंक का जहाँ पे काफ़ी सारे काफ़ी हज़ारों की तादाद पे पहुँच जो थे वहीं पे मर्डरर्स क्रेडिट पे, जो कि उसकी खुशी का बायस थे कि वहीं पे उसको अवेलेबल होते. You may depend on it, sir. He told Mr. Utterson, I have in my hand. We must have lost his head or he never would have left the stick, or above all, burned the checkbook. He'll need money to live. We have nothing to do but wait for him at the bank and get out the wanted posters. अच्छा, अफसर ने कहा मिस्टर अटरसन को कि ये अब हमारे हाथों में है. ये इस तरह से ये बिल्कुल मतलब लॉस्ट हिज हेड, यानी कि बिल्कुल इसका दिमाग जो इसकी जगह पे नहीं लग रहा है इस बंदे का, वरना इस तरीके से स्टिक यहाँ ऐसे नहीं छोड़ता और इस तरीके से चेक बुक जो वो बर्न ना करता. तो डेफिनेटली ज़िंदा रहने के लिए मनी चाहिए होती है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह से अगर प्रॉपर दिमाग का होता तो वो कभी भी इन चीज़ों को जलाता नहीं. सो हम ये करेंगे कि हम इसके लिए बैंक पे वेट करेंगे और इसके लिए वांटेड पोस्टर जो है वो हम निकलवाएंगे. This, however, was not so easy to accomplish, for a few people knew Mr. Hyde. Even the master of the servants' maid had only seen him twice. His family could nowhere be traced. He had never. यानी कि ये काफ़ी मतलब ये सब करना कुछ इतना कंप्लीट करना ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ही मिस्टर हाइड को जानते थे. इवन जो मास्टर था या फिर उसकी मेड सर्वेंट थी उसने भी सिर्फ 2 दफ़े ही देखा था, और मिस्टर हाइड की फैमिली थी वो भी कहीं जो है वो ट्रेस नहीं हो पाती थी. So they were never photographed, and the few who could describe him as differed widely. One common about only one point where they agreed that was the haunting sense of strangeness with which he loved people. अच्छा, उनकी किसी फैमिली की कोई फोटोग्राफ्स नहीं थी, कोई सबूत नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं थे कि वो लोग कहाँ थे, कहाँ रहते थे, किधर से आए थे. मतलब डिफरेंट जिन लोगों की भी उनके बारे में जो भी बोलना था वो हर तरह की डिफरेंट सेइंग्स थी कि किसी को कोई प्रॉपर तरीके से उनके बारे में कुछ पता नहीं था. एक चीज़ के बारे में सब एग्री करते थे, वो थे उसकी थी वो हॉन्टिंग सेंस थी, यानी कि वो जो कभी हॉन्टिंग सेंस के समथिंग विच यू कैनॉट फॉरगेट, जो उसकी स्ट्रेंजनेस थी, जो जिस तरह वो अजीब किस्म का बंदा था उसको कोई भूल नहीं सकता था. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. अच्छा, बेसिकली स्टोरी का जो सस्पेंस है वो ये है कि ये डुअल पर्सनालिटी पे है, यानी कि बंदा एक ही है. डॉक्टर जैकल भी एंड मिस्टर हाइड भी, ये दोनों एक ही बंदे के नाम है, ये दोनों एक ही बंदे, बट हो सकता है माइट भी कि उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी हो. और तो ये डुअल पर्सनालिटी इस नावल का जो सस्पेंस था वो ये था कि ये दोनों बंदे एक ही हैं. अच्छा, अबाउट द ऑथर, दिस इज़ टेकन फ्रॉम अ नोवेला बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. अच्छा, नोवेला जो होता है वो अगर हम इसको डेफिनेशन पे जाएँ तो नोवेला बेसिकली जो शॉर्ट स्टोरी होती है. नोवेला इज समथिंग विच इज़ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी एंड शॉर्टर देन अ नॉवल, यानी कि नॉवल से छोटा होता है, इसको हम नोवेला कहते हैं. ये नॉवल बेसिकली रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का लिखा हुआ है, और ये उन्होंने नॉवल जब लिखा कि व्हेन ही वाज सिक वंस. एंड अच्छा, इसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड. तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट एक चैप्टर है इस नॉवल में से, और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ 1886 में. इट्स अबाउट London lawyer named Mr. Utterson investigates strange occurrences between this old friend Dr. Henry Jekyll and the evil Edward Hyde. ये केस बेसिकली स्टोरी जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेट में निकल जाती है. जो मिस्टर अटर्सन हैं, जो लॉयर का नेम है, और जो डिफरेंट स्ट्रेंज अकरेंसेज, जो डिफरेंट चीज़ें हैपन होती हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि जो दोनों बंदे एक ही हैं. What Mr. Utterson doesn't realize is that the good Dr. Jekyll has created a potion that transforms into the evil Mr. Hyde, and Mr. Hyde does not want to change back. Stevenson wrote the novella very quickly during a period of illness. It was an immediate success and remains popular today. अच्छा, मिस्टर अटर्सन इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सके कि जो डॉक्टर जैकल थे वो किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते थे ईवल मिस्टर हाइड में, और वो वैसे ही रहना चाहते थे. मतलब वो ही डिड वांट कि मैं वापस से डॉक्टर जैकल बन जाऊँ, एक अच्छी पर्सनालिटी बन जाऊँ, बट ही वांटेड टू रिमेन एज ईवल एज मिस्टर हाइड. सो ये नावेला जो लिखा था मिस्टर स्टीवेंसन ने, वो बहुत ही जल्दी लिखा था जब वो सिक थे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, और बहुत सक्सेस हुआ और ये आज तक भी पॉपुलर है. So this was all about the story, the Carew murder case. Hope you must have understood very, very well. Okay, next video में inshallah I'll be uploading the questions and all the exercises of the chapter. So don't forget to make the mind map and कोई भी अपने difficult words pick करके और उसको mind map बनाइएगा, then find out the meaning as well. And don't forget to open the book in front of you while you search for the meaning in the dictionary ताकि आप most suitable meaning according to this chapter
निकाल सकें. Okay, thank you so much for watching. इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में for the question answers. Take care, Allah Hafiz.